وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، حشر کے میدان میں سچے مالک اللہ کے سامنے پورے خلائق جب جمع ہوں گے، کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، خوش و خرم ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی ملنے کی خوشخبری، سچے مالک کی رحمت میں جانے کی تڑپ اور تمنا، اور جنتوں کی نعمت کی دل میں تمنا انہیں ان کے چہرے پر نظر آئے گی۔ تعرف، تو جان لے گا، تو دیکھ لے گا، فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جو نعمتیں انہیں اللہ دینے والا ہے، کیونکہ دنیا میں فی الایام الخالیہ، خالی دنوں میں سچے مالک کی بندگی کا حق ادا کر کے وہ جیے تھے، تو آج انہیں خوشی مل رہی ہے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ سچے مالک کو لا تدرکہ الابصار، اس دنیا کی نظریں نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نظروں کو پکڑ لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، بڑا ہلکا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ نراکار روپ میں ہم انہیں اس سچے مالک کو جان سکتے ہیں۔ الی ربہا ناظرہ، لیکن قیامت کے دن سچے مالک اللہ کو ڈائریکٹ اپنی اسی آنکھ سے سچا مالک طاقت دے دے گا، اور سچے مالک کی حقیقی شکل و صورت میں ہم اسے دیکھیں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف خوش و خرم چہرے، جنت میں جانے والے چہرے دیکھیں گے، اور جنت میں ہر 7 دن کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سچے مالک اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ سلام کیا جائے گا، خود اللہ سلام کرے گا، اور جب وہ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کو ڈائریکٹ حقیقی شکل میں دیکھیں گے، اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے دیکھنے کا جو مزہ ہوگا وہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ایسے چہرے خوش و خرم ہوں گے۔ ووجوہ، اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے مجرموں کے، اگیانی لوگوں کے، یومئذ باسرہ، جو بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور جن کے منہ ٹیڑھے ہو رہے ہوں گے، عبوسا، کالحون، منہ ٹیڑھے کر رہے ہوں گے، تیوریاں چڑھائیں گے، ہونٹ ٹیڑھے ہوں گے، اور بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے، کالے ہوں گے۔ کئی جگہ پر یہ دونوں نقشے اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ جو بگاڑے ہوئے چہرے کے، یہ کالے چہرے والے، یہ پریشان، اثر الندامہ، پریشانی اور ندامت کو جو چھپائیں گے، یہ لوگ تظن، گمان کریں گے اور پکا یقین کر لیں گے کہ اب تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ ان یفعل بها فاقرہ، گردن توڑ، کمر توڑ عذاب اب ملنا ہی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب یہ جان ترقوہ نام کی ہڈی، پسلی کے اوپر 2 آڑی ہڈی، دونوں گردن کے بازو میں، دونوں شولڈر سے جو جا کر ملتی ہے، کلیویکل بولتے یا ترقوہ ہڈی، جب یہاں تک جان کھنچ کر آ جائے گی، لمبی لمبی سانس لینے لگے گا، اس انداز سے سب بیٹھے ہوں گے، گھر والے، بیوی، بچے رو رہے ہوں گے، رشتہ دار جمع ہوں گے، جب جان کھنچ کر گلے تک آ جائے گی، بلغت القلوب الحناجر، جب یہ حنجرہ گلے تک کے دل پھڑکتے پھڑکتے آ جائیں گے، اذا بلغت التراقی، اس ترقوہ ہڈی تک پھڑک دل کی محسوس ہوگی اور جان نکلنا شروع ہو جائے گی۔ موت کا فرشتہ ملک الموت وکل بکم، جو تمہارے پیچھے لگا دیا گیا ہے، تمہاری روح کھینچنا شروع کر دے گا۔ وقیل من راق، کہا جائے گا اب تو کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو موت کے پروسیجر میں ہے، اب تو سکرات الموت میں ہے، اب تو مر رہا ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ بندہ بھی یہ سمجھ لے گا مرنے والا کہ اب سب چھوڑ کر جانا ہے، پوری دنیا چھوٹنا ہے، اب تو فراق کا وقت، جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، ایک آواز سچا مالک دے گا، زمین سے تم کالفراش المبثوث، پر والے کیڑے مکوڑے ٹڈیوں کی طرح، کأنہم جراد منتشر، پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح تم بھاگتے ہوئے سوراخ سے، زمین سے، اپنی قبروں سے نکلو گے، تم سب جمع ہوگے۔
कअन्नहुम इला नुसुबिन युफिदून, जैसे ऐसी तेज़ी से भागेंगे किसी मकसद और गोल की तरफ भाग रहे हैं। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और जब चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो उनके पैर एक दूसरे से टकराएंगे, पिंडलियाँ टकराएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और पिंडलियाँ टकरा के गिर जाएंगे। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर कोई वारिद होने वाला है, वहाँ पहुँचने वाला है, वहाँ जाने वाला है, पुल सिरात पर जाने वाला है, पुल सिरात पर कटेगा, उसके पैर कटेंगे। हौल जहन्नम जिसिया, और जहन्नम के चारों इर्द गिर्द मुजरिमीन घुटने के बल घिसट कर जाएंगे। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, हर मुजरिम ग्रुप, हर जथा, हर जमात जिसने बंदगी का हक अदा नहीं किया, देखेगा घुटने के बल घिसट घिसट के जाएगा, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए। कितने दिन, कितने सदियां निकल जाएगी, कितने साल निकल जाएंगे, पैर ज़ख्मी हो जाएंगे, एक दूसरे से टकरा के हड्डियां टूट जाएगी, फिर घुटने के बल घिसट घिसट के चलेंगे। हौल जहन्नम जिसिया, और घिसटते घिसटते जहन्नम के चारों इर्द गिर्द ये जहन्नमी मुजरिम पहुँच जाएंगे। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा कुल्लु उम्मतिन जासिया, हर ग्रुप, हर जता, हर मुजरिमों का बड़ा जो दुनिया में बैठकर मीटिंगें करते थे, प्लानिंग करते थे, अज्ञान के लिए काम करते थे, ज्ञान और ईमान के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो ये घुटनों के बल घिसट घिसट के जाएंगे। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ऐसे ही घिसट घिसट कर तुम्हें खिंच कर जाना है सच्चे मालिक की तरफ। फला सद्दक़, सदका नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं किया, इंसानों की खिदमत नहीं किया, जो कुछ माल दिया था व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से जितना भी था उसमें से खर्च करो लोगों के लिए, इंसानों के लिए, ज़रूरतमंद, हाजतमंद के लिए। फ़र्ज़ ज़कात के अलावा युरीदून वजहल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की खुशी चाहने के लिए मज़ीद नफ़ल सदक़ात और अतियात, नफ़ल ज़कात भी खर्च करते हैं। फ़ला सद्दक़, सदका नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं किया, लोगों की खिदमत नहीं किया, जा रहा था, किसी को तड़पता देखा, किसी ज़रूरतमंद, हाजतमंद का इल्म हो गया तो भी उसे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं किया। लिस्साइल वल महरूम, जबकि तेरे माल में मांगने वाले का और महरूम दोनों का हक है। अलक़ानी वल मुअतर, जो आके नहीं मांग रहा, बैठा हुआ है अपने घर पे, वो जाके खोज करके उसको भी दो, और जो मांग रहा उसको भी दो। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, अल्लाह के रास्ते में, ज्ञान में, ईमान में, इस दुनिया के दुख तकलीफ़ परेशानी झेलते हुए, इस ज्ञान और ईमान के रास्ते में बंदगी का हक अदा करते हुए लोगों को ये सच्चा मैसेज और पैगाम पहुँचाने वाले फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, लोगों से चिमट के नहीं मांगते। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, तबलीग के लिए, दावत के लिए, सच्चे मालिक का ज्ञान पहुंचाने के लिए, लोगों को बंदगी की तरफ लाने के लिए, सच्चे मालिक की वड़क के लिए। ऐसे लोगों को ढूंढो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। अगर तुम ज्ञान और ईमान और तबलीग का हक अदा नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट करके तुम हिस्सेदार हो जाओगे। फ़ला सद्दक़, सदका नहीं किया दुनिया में, वला सल्ला, नाम स्मरण का हक अदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज सिमरन का हक अदा नहीं किया, रुकू सजदा नहीं किया, सच्चे मालिक की बंदगी का हक इबादत के ज़रिए झुककर वक्त ब वक्त और 24 घंटा उसका सही बंदा बनकर हक अदा नहीं किया। फ़ला सद्दका, ना सदका दिया, वला सल्ला, ना नमाज़ पढ़ा, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी की डगर, जीने का अंदाज़ ये बता रहा था कि झुटलाने वाला है। इसका जीने का अंदाज़ ये बता रहा है कि सच्चाई को मुँह से तो माना है, लेकिन अमल में, ज़िंदगी में, करम में, बरतने में हक उसके ज़िंदगी में नहीं आया, झुटला रहा है। झुटलाने वाले दो होते, एक तो कह देता मैं नहीं मानता, साफ़ तौर पर हक़ को कबूल नहीं करता, काफिर, जाहिद, इनकार करने वाला, अकड़बाजी, गुरूर, घमंड, तकब्बुर करने वाला। और एक ने कहा मैंने मान लिया, ज़बान से कलमा पढ़ लिया, लेकिन उसका हक़ अदा नहीं कर रहा, वो भी झुटलाने वालों में जाएगा। वलाकिन कज़्ज़बा, उसने झुटलाया था। मैं कौन सा झुटलाने वाला हूँ, ज़रा गौर कर लूँ। व तवल्ला, मुँह फेरा, मैं कैसा मुँह फेरने वाला हूँ। दिन रात अल्लाह की किताब मेरे पास है, पढ़ी जाती है, एंड्रॉयड फ़ोन में मेरे सामने आती है, रेडियो में, टीवी में, मेरे घर में
कुरान की आवाज़ आई तो बच्चा भी उसका कान घुमा के बाजू में चैनल सरका देता है। एंड्रॉयड फ़ोन पर है, कुरान के चैनल्स है, तर्जुमे के, तफसीर के, मानी और मतलब के हमने 13-14 पारे डाल दिए, लोगों को सुनने की फ़ुर्सत नहीं। ऐ अल्लाह उन्हें तौफीक दे कुरान की तरफ आने की, मुँह मोड़ने से बाज होने की और इस कुरान का हक़ अदा करने की। व तवल्ला फ़आरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने हाल पे छोड़ दो जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, उसका सारा इरादा, ज़िंदगी का मकसद, सारी तगोदौ भाग दौड़ मेहनत सिर्फ दुनिया के लिए हो रही है। ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, उसके एजुकेशन का, उसकी माइती का, उसके नॉलेज का, उसके डिग्री का, उसके एकेडमिक ईयर्स का सिर्फ मकसद ये है। ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, दुनिया की ज़िंदगी, धोखे की चीज़ें हासिल करना और ये सब छोड़कर उसे जाना है। व तवल्ला, ये मुँह मोड़ने वाला है। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, और अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ ज्ञान और ईमान के रास्ते पर मेहनत करके, दुख तकलीफ़ परेशानी उठाकर सारी दुनिया तक सच्चे मालिक की वड़क पहुँचाने का काम करने की बजाय, जबकि आज भी दुनिया में सच्चे मालिक के जानने वाले, उसकी वड़क और पहचान में आने वाले, उसके ज्ञान और ईमान में आने वाले, कुरान की ज्ञान और ईमान की बातें मानने वाले कम हैं। ज़्यादा सच्चे मालिक से भूले हुए लोग हैं, नहीं जानते उसकी वड़क, उसका तारुफ, उसका ज्ञान नहीं जानते। तो इस काम के लिए तुम खड़े हो जाओ। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, लेकिन तुम ऐश व इशरत में, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में, कपड़े में, पहनने में, डेकोरेशन में, घर सजाने में, बनाने में, दुनिया की चीज़ों में तुम लगे हुए हो। अपने घर वालों के साथ बहुत फ़ायदे की चीज़ें तुम हासिल कर रहे, बहुत मज़े उड़ा रहे, बहुत ऐश कर रहे। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, आगे की वीडियो में सुनिए।